Good evening, my dear students. We are welcoming you once again in orthodontics campaign. In today's lecture, we'll be discussing many things which are very important for the upcoming exams of any dental field. Now, as per the previous papers you have seen in dental GPSC, you have seen that very easy questions were there. Now, few people are telling that some were mixed, and some other are telling that unknown questions were asked. So why such feeling is there? I will explain you. You repeat more and more all the previous year papers. You go with revision of all the previous year papers, notes. Then all the basic classification tables you are perfect. Then paper will be easy for you because out of 200, at least 140 will be such questions. Okay. Now mixed means they will twist the questions. They will change the question pattern. Okay. For example, cleft lip is a topic which is in oral surgery, which is in pedo, which is in anatomy embryo, okay, which is in prosto. So questions will be coming from cleft lip or cleft palate, okay, because it is a topic which will cover most of the subjects. So when you are preparing, you have to think of such MCQs that if MCQ is asked, major of the subjects will be covered. So now I'm requesting you, first of all, to be curious. Oh, curious about what? That what pattern MCQs they can ask. Okay, so when we are attending a lecture, at this point in your mind, curiosity should be there. Such questions will be asked, such question will not be asked. So when you are reading anything, for example, any classification, for example, Glasgow comma scale, so you should be prepared that, for example, a question comes to in your exam that the score is 8. What is the condition? Score is 12. What is the condition? Such curiosity should be there. Okay. So when you read, you have to prepare notes, you have to be curious. Most important thing is you have to be very specific. What is specific? कुछ लोगों को आदत होती है कि वो ऑप्शंस पढ़ के आंसर बताते हैं, तो हमको ऐसी प्रिपरेशन करना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पूरा करते हो without options, you should know the answer and you should directly search the answer. तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो वो कैसे आपकी पैटर्न इम्प्रूव होगी? तो जितने भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मैं भी आपको थोड़ा गाइडेंस देता हूँ, ओवरव्यू. उसको आप ठीक से कर लो, ठीक है, पक्की तरह से. कोई भी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉन्टिक, ठीक है, तो ये आपको 50 क्वेश्चंस तो इसमें से आ जाएगा, ठीक है. सॉफ्ट पैलेट का क्लासिफिकेशन, फेरिंग्स का क्लासिफिकेशन, फिर ये कार्टिलेज का क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन. तो ऐसे एक हैबिट रखिए कि जितने भी क्लासिफिकेशन है, जितने भी टेबल्स है, वो सबको आप अपनी तरह से एक नोट्स में लिख दो. तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे रिवीजन की, तो बार बार ये आपको रिवीजन करना है, ठीक है. फिर कंपोजिशन और रोल, डीएम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत सारी चीजों में बार बार आता है कि एमटीए में क्या होता है, उसमें क्या रोल होता है, उसका वाटर पाउडर रेशियो क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एडवर्स रिएक्शन क्या होता है, हम क्यों यूज नहीं करते. ऐसे क्वेश्चंस कोई भी चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. थर्ड थिंग, आपको ऐसा नहीं कि खाली प्रीलिम्स पास कर दोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे. आपको प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू भी है.
तो आपने अभी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लिए, सब कर लिया, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, ठीक है, जैसे कि बिहेवियर मैनेजमेंट, तो आप थोड़ी, वन लाइनर का क्वेश्चन है, आपको 5 या 10 मिनट ये क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा। कौन कौन सी थीरीज है, क्या क्या मैनेजमेंट के पैटर्न्स है उसमें, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से थ्योरी दिया है, अभी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या है, ये सब आपको आंसर देने होंगे। तो जब आप नोट्स लिख रहे हो तो ऐसे भी लिखिए कि आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर आए। तो क्या होता है, आपने एक बार कोई भी टॉपिक पर पूरे की पूरी डिटेल्स लिख दी, जैसे कि मेजर कनेक्टर है या फिर मायोफंक्शनल अप्लायंसेस, उसके बारे में आपने जितनी बात पढ़ी है अलग अलग बुक से, इंटरनेट के सोर्स से, एमसीक्यू से, वो सब आपको एक जगह लिख लेना है। तो वो क्या होगा, आपको अगली बार जब क्वेश्चन पूछा जाएगा माई फंक्शनल अप्लायंस का, कोई भी, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और आप मुझे एक भी पेपर बता दीजिए अभी तक जीपीएससी का या कोई भी एग्जाम का जिसमें मेजर कनेक्टर का क्वेश्चन आया हो, माई फंक्शनल अप्लायंस का क्वेश्चन आया हो। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज, आप अपना जो गोल है वो इजीली अचीव कर सकते हो प्लानिंग के साथ। तो प्लानिंग क्या है, अभी मैंने आपको दो एमसीक्यू बता दिए कि मेजर कनेक्टर का आएगा, एक आएगा माई फंक्शनल अप्लायंस का, एक आएगा हैबिट का। तो ऐसे 200 टॉपिक ही है डेंटल में, 200 क्वेश्चंस आएंगे। तो क्यों ना आप ये सारे टॉपिक को परफेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ये एमसीक्यू एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। और थर्ड थिंग जो मैंने अभी बताई इम्पोर्टेंट, जो हर कोई जो पास होता है, हर कोई रैंक लाता है, उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें एक कॉमन होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है, नॉट ओनली डेंटल जीपीएससी, एमडीएस के पेपर होंगे, एम्स के पेपर होंगे, और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आपको मुदित खन्ना नाम की बुक आती है, जो एमडी एमडी की प्रिपरेशन करते हैं ना जो लोग एमबीबीएस के बाद जाने के लिए, वो बुक, और अमित आशीष। तो ये सारे पेपर्स आप सॉल्व कर दोगे तो आपका पक्का चांस मिल जाएगा। क्योंकि ये मैंने क्यों सब्जेक्ट्स ये बताए दो बुक्स, क्योंकि इसमें से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब क्वेश्चंस इसमें से आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं हमारा ऑर्थो का टॉपिक। अभी तक हमने ऑर्थो में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। पहले तो ऑक्लूजन कर दिया, फिर माल ऑक्लूजन, फिर सिफेलोमेट्रिक्स, ठीक है, फिर डेंटिशन, मिक्स्ड वाला, पहले वाला, ठीक है। फिर आपको क्या समझाया था, क्लेफ्ट वाला पार्ट पोर्शन समझाया था, फिर सारे एनालिसिस समझा दिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रॉस बाइट्स पर। तो व्हाट इज क्रॉस बाइट, ठीक है। तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कैसा रिलेशनशिप, ये ऊपर की आर्च जो होती है उसके अंदर नीचे की आर्च होती है, ठीक है। लोअर टीथ विल बी लिंगुअल और इनसाइड द आर्च ऑफ अपर टीथ, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपके टंग के बगल में आपको कांटेक्ट जो होगा पहले, वो लोअर के कस्प होंगे या लोअर टीथ कांटेक्ट होगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्लूजन। बट ऐसा सोचिए कि लोअर का जो पोर्शन है ये अपर का है, लोअर के टीथ बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस बाइट, ठीक है। तो जो बक्कोलिंगुअल रिलेशनशिप नॉर्मल होना चाहिए, यहाँ पे बक्कल, यहाँ पे लिंगुअल, ठीक है। ये मैक्सिला, ये मैंडिबल, तो ये रिवर्स हो जाएगा, बक्कल, बक्कल,
ठीक है, यहाँ पे बार आएगा लिंगुअल, यहाँ पे बार आएगा, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस बाइट। फिर उसको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसका, कि वो करेक्ट नहीं होता है अपने आप, इट इज नॉट सेल्फ करेक्टेबल। फिर आता है उसमें प्रेवलेंस, तो कब होता है ये, ठीक है, तो डेसिडियस में भी होता है और मिक्स डेंटिशन दोनों में वो पाया जाता है, तब भी वो हो सकता है। अब उसकी इटियोलॉजी, तो ऑर्थो में कोई भी इटियोलॉजी पूछे कॉमन ही आएगी, एनवायरमेंटल, कंजेनाइटल, डेवलपमेंटल, ट्रॉमेटिक, आइट्रोजेनिक। तो ये जितने भी वर्ड्स है ना, वो आपको इंटरव्यू में काम आएंगे। आपको कोई क्वेश्चंस पूछा जाए कि माल ओक्लूजन क्यों होता है, ये क्यों होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉमन चीज बना देनी है, ठीक है। जैसे हमने फ्रैक्चर में सिखाया था, पेन, फिर हेमेटोमा, ब्रूइज, लेसरेशन, फिर कभी कभार नीचे बोन का कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है तो स्वेलिंग आ जाएगा, टेंडरनेस होगा। ये सब कॉमन फीचर्स आपको बोलने भी आने चाहिए, ठीक है। रटने से अच्छा है आप थोड़ा कॉमन पार्ट बना दो। अब क्रॉस बाइट को डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, यूनिलैटरल होता है या बायलैटरल भी होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्राउडेड टीथ होंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिला का अर्थ छोटा हो गया है, तो क्राउडिंग आपको देखने को मिलेगा। या रोटेटेड टीथ देखने को मिलेंगे, पैलेटली और बकली डिस्प्लेस्ड टीथ। खास बात यह है उसकी क्रॉस बाइट के साथ नैरो टेपरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पैरेट का वॉल्ट देखोगे ना, तो नैरो हाई होगा, ठीक है, और मैक्सिलरी आर्च भी वी शेप्ड होगी, ठीक है। तो ये उसके फीचर्स है क्रॉस बाइट के। अब कभी कभार क्रॉस बाइट हिडन होती है, ठीक है, दिखती नहीं है, वो क्यों ऐसे होता है, तो हम क्लास 3 को हाइड करने के लिए, क्लास 3 में क्या होता है, लोअर का मैंडिबल ज्यादा होता है, बड़ा, लोअर के टीथ बाहर होते हैं, और अपर का जो अंदर होता है मैक्सिला टीथ, तो उसको हाइड करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप अपर के इंसाइजेस को थोड़ा स्पेसिंग देकर थोड़े बाहर अरेंज कीजिए, ठीक है, और लोअर इंसाइजेस को एंगुलेशन में मत रखिए, थोड़ा स्ट्रेट रखिए। तो ये लोग ऐसे बता रहे हैं कि अगर क्रॉस बाइट होती है तो ऑर्थोडोंटिक उसको करेक्ट भी कर सकता है। कैसे, क्रॉस बाइट में लोअर के टीथ जो होते हैं वो बाहर होते हैं और अपर के टीथ अंदर होते हैं। तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि आप अपर के इंसाइजर को थोड़े स्पेसिंग देकर बाहर ले जाइए, उसको बोलेंगे फ्लैड, थोड़ी स्पेस भी होगी और बाहर थोड़े प्रोक्लाइंड होंगे, ठीक है। और इंसाइजर्स को लोअर के उसको स्ट्रेट कर दो, यानी कि बाहर का जो प्रोक्लेनेशन होता है उसको अंदर थोड़ा कर दो, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऐसे होता है, ये अपर का है, ये लोअर का, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस बाइट जैसा देंगे। तो क्लास 3 में क्या होता है, लोअर का जो होता है वो बाहर होता है और अपर का अंदर होता है। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं ये टीथ को यहाँ बाहर ले लीजिए, एंगुलेशन दे दीजिए और इसको अंदर ले लीजिए, तो ये नॉर्मल ऑक्लूजन हो जाएगा। तो ये हिडन क्रॉस बाइट जैसा मामला है, ठीक है। और क्लास 2 होगा तो आपको उल्टा करना है, ठीक है, नीचे के दांत अंदर है तो फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि क्रॉस बाइट होता है तो क्या दिक्कत है, आपको क्यों उसको निकालना है। निकालना इसलिए है
कि अगर प्रॉपर बकोलिंगुअल रिलेशनशिप होगी तभी जाके आप प्रॉपर मेस्टिकेशन कर पाओगे, तभी जाके जितने भी स्टोमेटोग्नेथिक सिस्टम है हमारी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जो मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म रहेगी, उसके फंक्शन सही रहेंगे। आपको फंक्शन में सही रहेगा तो फिर आपको पेन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने क्रॉस बाइट रखा है पेशेंट में तो टीथ के डैमेज के चांस ज़्यादा है, टूट जाएंगे, वेयर हो जाएंगे। कभी कभार क्रॉस बाइट होगा तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं रिसेशन भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट आता है एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स में क्या आएगा कि आपको क्रॉस बाइट में जो होगा पेशेंट उसका एस्थेटिक्स बहुत ही पुअर होगा, उसको ठीक करने के लिए आपको क्रॉस बाइट ट्रीट करना होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए क्रॉस बाइट के बारे में, डेफिनेशन, डायग्नोसिस, हिडन और क्यों फिक्स करना है, ठीक है। डाउट हो तो मुझे बताइए वरना हम थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं। अब एंटीरियर क्रॉस बाइट्स, ठीक है, आगे के दांत की बात कर रहे हैं। उसमें आएगा पहले डेंटल, ठीक है। तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं एंटीरियर में कभी बहुत सारे दांत होते नहीं, कभी कभार एक या दो टीथ होते हैं क्रॉस बाइट में, ठीक है, ओनली वन या वन और टू टीथ। उसके रीजन क्या है? तो देखो, ऑर्थो के जितने इटियोलॉजी है ना वो सब यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। ये आपको पूछा गया है कि ऑर्थोडोंटिक्स ब्रांच का इवोल्यूशन क्यों हुआ, तो ये जितने भी रीजन है वो यहाँ भी आएंगे। आर्च लेंथ सफिशिएंट नहीं थी, जब टीथ ग्रो हो रहे थे, टीथ इरप्ट हो रहे थे, तो आर्च लेंथ जो नॉर्मल होनी चाहिए वो नॉर्मल नहीं थी, कम थी। इसलिए कोई दांत है ना वो अपनी तरह उसकी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया, थोड़ा बाहर आ गया, ठीक है। तो नीचे का दांत बाहर रह गया, ऊपर का अंदर रह गया, इसलिए वो रीजन हुआ। फिर क्रॉस बाइट का दूसरा रीजन ये है कि जो डेसिडियस टूथ है ना वो ऐसे रह गए और परमानेंट टूथ बक्कली जगह देखकर वहां से इरप्ट होना चालू कर दिया। तो ऐसा भी होता है क्रॉस बाइट का रीजन। तीसरा ये है कि जब टूथ बर्ड्स होते हैं आर्च में, जो में, तब कोई ना कोई इंजरी होती है और उस इंजरी के कारण क्या होता है, जो टूथ बर्ड होगा, ठीक है, वो थोड़ा बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अभी मैं एक आपको बात समझाता हूँ। अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि जितने भी इटियोलॉजी है क्रॉस बाइट्स की, वो सब इटियोलॉजी ऑर्थोडोंटिक्स ब्रांच क्यों खोली उसका भी एक रीजन है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स, इटियोलॉजिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आर्च लेंथ नहीं, प्राइमरी टूथ ऐसे रह गए, कोई ट्रॉमा के कारण हुआ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए, ये सब कॉजेज आप लिख सकते हो, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। स्केलेटल यानी कि बोन का क्रॉस बाइट है, ठीक है। तो इसमें भी यही रीजन आएगा, आइदर डेवलपमेंटल, फिर एनवायरमेंटल, फिर ग्रोथ फैक्टर्स आया, कोई ट्रॉमा हुआ, ये सब उसमें आएगा, ठीक है। अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। जो डेंटल का होता है वो तो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, लेकिन जो स्केलेटल क्रॉस बाइट होगी तो हमको मैंडिबल और मैक्सिला के पोजीशन उसको नॉर्मल या यूनिफॉर्म में लाना है। तो कैसे लाओगे आप, ठीक है। तो जो पेशेंट ग्रो कर रहा है उसको फेस मास्क दोगे, ठीक है। तो जिसका मैक्सिला छोटा है, ठीक है, उसको आप फेस मास्क दोगे। तो ये फेस मास्क से क्या होगा, मैक्सिला को पुल करेगा वो, ठीक है। पोस्टीरियर बाइट प्लेन, ठीक है। तो पीछे के दांत पर आप ये थोड़ी बाइट दे दोगे तो क्या होगा, जंप होगा और मैंडिबुलर मैक्सिला को प्रॉपर ऑक्लूजन में आने के लिए एक
ग्रोथ पैटर्न मिल जाएगा। और तीसरा आता है फिक्स्ड एज वाइज अप्लायंस। ठीक है, तो ये ब्रेसेस लगाकर भी आप एज वाइज अप्लायंस दे सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए ये अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान है। यहाँ पे ये लोगों ने क्या किया है, इंसाइडर्स जो अंदर जा रहे थे इस साइड, उसको थोड़ा बाहर ले लिया है। ठीक है, तो ये एक ऑर्थोडोंटिक प्लान भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको ये सोचना नहीं है कि वो कैसे करते हैं, खाली याद रखना है कि कौन कौन से अप्लायंस क्लास 3 माल ओक्लूजन में आते हैं। ठीक है, फिर फंक्शनल स्यूडो क्लास 3। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि कभी कभार क्लास 3 जो होगा ना, वो होता नहीं है, लेकिन पेशेंट के दांत नहीं होते या पेशेंट को हैबिट होती है, उस हिसाब से पेशेंट आगे के दांत से खाने की आदत कर देता है, तो उसको बोलेंगे हम स्यूडो क्लास 3। पीछे के दांत नहीं होंगे तो वो आगे के दांत से खाएगा, तो नीचे के दांत जो है ना वो आगे लाएगा, तो ऐसे क्लास 3 स्यूडो ऑक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट हम प्रॉपर हैबिट को दूर करेंगे, प्रॉपर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम करेंगे। ठीक है, अब एंटीरियर का पूरा हुआ, पोस्टीरियर का चालू हुआ। तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल है, ये थोड़ा एबनॉर्मल जैसा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस बाइट। कभी कभार वो यूनिलेटरल होता है, कभी कभार बायलेटरल होता है, कभी कभार सिंगल टूथ को इन्वॉल्व करता है या फिर ग्रुप्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, फिर जो टीथ की टिपिंग है वो कभी कभार बक्कल हो जाता है और कभी कभार लिंगुअल भी हो जाता है। क्रॉस बाइट होता है ना, तो टीथ का जो मूवमेंट होता है थोड़ा बक्कल भी हो सकता है और लिंगुअल भी हो सकता है। ठीक, उसका एक ये भी रीजन है कि कोई एक दांत होगा ना, वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, वो बक्कल इरेक्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम माल पोजीशन। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर ये डेंटल के जो पोस्टीरियर क्रॉस पैट हो वो कहाँ देखने को मिलेगी, वो नॉर्मल जो हमने इटियोलॉजिक फैक्टर्स बताए, तो ये लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि जो डेंटल की क्रॉस पैट है वो कभी कभार स्केलेटल क्रॉस पैट के साथ भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब उसके एग्जाम्पल, तो सीजर या बक्कल क्रॉस बाइट। ठीक है, इसमें मैक्सिलरी मोलार से वो कंप्लीटली बक्कल होंगे मैंडिबुलर मोलार्स से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सीजर या बक्कल क्रॉस बाइट, ऑक्लूजन ही नहीं होगा। अब ट्रीटमेंट क्या आएगी इसकी, तो आप रिमूवेबल अप्लायंस दे सकते हो, और उस अप्लायंस में क्या जोड़ देना है, फिंगर स्प्रिंग्स। ठीक है, उससे क्या होगा, टिप को टीथ करेंगे, दांत को टिप करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आएगा। फिर मिड लाइन जैक स्क्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैक स्क्रू का क्या इंपॉर्टेंस है, जो जो छोटा होगा उस पर स्क्रू लगाकर आपको एक्सपांड करना है। ठीक है, तब जाके वो ऑक्लूजन में आएगा। फिर फिक्स्ड अप्लायंसेस भी दे सकते हो। रिमूवल में दो चीज आई, एक तो फिंगर स्प्रिंग वाली, एक तो मिड लाइन जैक स्क्रू वाली, और थोड़ी अब आई फिक्स्ड अप्लायंसेस। उसमें क्या होगा, ये टॉर्क भी करेगा और डिरोटेट भी करेगा टीथ को। अगर आपके रिमूवल अप्लायंस से कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, तो आप फिक्स्ड अप्लायंस का भी यूज़ कर सकते हो। ये टूथ को रोटेट भी कर सकता है और टॉर्क के साथ उसको पुश भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे सर ये तो हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ कभी ना कभी ऑर्थो में आपको थोड़ा रटना पड़ेगा और लॉजिक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्रॉस बाइट आता है तो फिंगर स्प्रिंग आएगी, जैक स्क्रू आएगा, फिक्स्ड अप्लायंसेस आएंगे,
क्रॉस आर्च इलास्टिक्स आएंगे, और आप ओक्लूजल एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, या फिर प्राइमरी कैनाइंस को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। प्राइमरी कैनाइन को एक्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, आपकी जो आर्च लेंथ होगी वो इनफ हो जाएगी, क्राउडिंग नहीं होगा। क्राउडिंग नहीं होगा तो माल ओक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अपने नोट्स बनाकर याद रख लेना है कि क्रॉस पेड आता है तो फिंगर स्प्रिंग दे सकते हैं, मिड लाइन जैक स्क्रू दे सकते हैं, फिक्स्ड अप्लायंसेस देंगे, क्रॉस आर्च इलास्टिक्स देंगे, और ओक्लूजल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, और प्राइमरी कैनाइंस को आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, इजी है और तो, लेकिन थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि ये सब चीजें हमने देखी नहीं होती, फिर भी हमको याद रखना होता है। अब स्केलेटल माल ओक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो वो ज्यादातर बायलैटरल भी होगा, यूनिलैटरल भी होगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या आएगी, तो ऊपर का जो हमने देखा ट्रीटमेंट वही स्केलेटल में भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे तो आपको बोन को ही एक्सपांशन करना है, तो रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन, सुपर स्क्रू आएगा, डब्ल्यू आर्च आएगा, कॉर्ड हेलिक्स आएगा, रिमूवेबल स्प्लिंट एक्रिलिक प्लेट्स, ये आपको याद रखना है। याद रह जाए तो ठीक है, वरना ऑप्शन में आप छोड़ देना। ठीक है, अगर छोटा पेशेंट होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें रिमूवेबल स्प्लिंट एक्रिलिक प्लेट्स, ठीक है, एक्रिलिक प्लेट जो स्प्लिट होती है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको एक्सपर्जन से आपको जो में या बोन में या टीथ में थोड़े मॉडिफिकेशंस लाना चाहते हो एक्सपांशन से, तो ग्रोथ इज नेसेसरी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ मैंडिबुलर मैक्सिला। अगर आप एक्सपांशन करना चाहोगे तभी वो हो सकता है। एक बार ग्रोथ पूरी हो गई तो आपको फिर सर्जरी करके वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्केलेटल के लिए कौन कौन से अप्लायंसेस हैं ये सब देख, ये आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में भी काम आएगा। कॉर्ड हेलिक्स एक्सपांडर, डब्ल्यू आर्च एक्सपांडर, ठीक है, रैपिड पैलेटल एक्सपांडर, सुपर स्क्रू एक्सपांडर, और स्प्लिट प्लेट एक्सपांडर। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब डब्ल्यू आर्च और कॉर्ड हेलिक्स का एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो एडवांटेजेस ये है कि आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो एक्सपांशन। किसका एक्सपांशन, तो देखिए यहाँ डायग्राम में, ये आपको एक्सपांड करना है, ये आपकी जो है वो ऐसी है, इसको थोड़े टाइम के बाद ऐसा करना है। तो ये एक्सपांड करोगे यहाँ से, तो आपको ये एक्सपांशन वाला अप्लायंस चाहिए, सुपर स्क्रू एक्सपांडर। ठीक है, तो डब्ल्यू आर्च प्लस कॉर्ड हेलिक्स, उससे क्या होगा कि जो एक्सपांशन होता है ना, वो डेंटिस्ट कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और वो थोड़ा स्पेसिफिक भी है, जितनी मूवमेंट चाहिए उतना एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा फायदा है डब्ल्यू आर्च और कॉर्ड हेलिक्स का। उसका डिसएडवांटेज, तो क्योंकि डेंटिस्ट के हाथ में वो प्रोविजन है कि कितना एक्सपांड करना है, कितना नहीं करना है, तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसको बार बार आपको बुलाना पड़ेगा, कहाँ पे, क्लिनिक पर। ठीक है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। अब रैपिड पैलेटल एक्सपांडर, ठीक है, जो आप रैपिड करना चाहोगे, उसका एडवांटेजेस क्या है, तो वो जल्दी से होता है, चेयर टाइम कम होता है, और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस, ठीक है, वो क्या है, तो वो लॉन्गर फॉर द पेशेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, आप ये करोगे तो उसमें स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं मिलेगी, तो ये पेशेंट एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा लॉन्गर टाइम
रहेगा ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें इंडिविजुअल टूथ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। किसमें? रैपिड पैलेटल एक्सपांडर। तो डब्ल्यू आर्च और कॉर्ड हेलिक्स में ये इंडिविजुअल मूवमेंट पॉसिबल है। तो अब मेरा ये लॉजिक समझिए। आपको अगर क्वेश्चंस पूछा जाए एमसीक्यू में, रैपिड पैलेटल एक्सपांडर का एक एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डब्ल्यू आर्च कॉर्ड हेलिक्स का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो ये सारी लॉजिक आपको ये लेक्चर से पता चल गया। उसके फायदे क्या है, उसको कब कब यूज करना है, ये सब चीजें। ठीक है, अब तीसरा क्रॉस पैड आता है पोस्टीरियर में, फंक्शनल क्रॉस पैड। ठीक है, उसको मैंने समझाया कि पेशेंट के क्रॉस पैड में टीथ होते नहीं, लेकिन पेशेंट को हैबिट हो जाती है, ठीक है, क्रॉस बाइट में बंद करने के लिए। तो वो उसकी कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है। अगर पेशेंट चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फंक्शनल है तो पहले क्या करेंगे हम, पहले वो हैबिट को निकालना पड़ेगा। वो जो क्रेविंग से उसके जो सूडो फंक्शनल क्लास 3 में ले जा रहे हैं ऑक्लूजन को, उसको पहले थीरीज और जो लॉजिक से उसको निकालना पड़ेगा, फिर जाके आप ट्रीटमेंट उसमें कर सकोगे। ठीक है, अब अप्लायंसेस के बारे में बात करें यहाँ पे। ठीक है, रिमूवेबल और फिक्स्ड। तो दो टाइप के जो अप्लायंसेस होते हैं, रिमूवेबल और फिक्स्ड। उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? आप आराम से क्लीन कर सकते हो। ठीक है, फिर खाली वो टिप करेगा, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा वो। रिमूवेबल है इसलिए वो डिजायर्ड मूवमेंट ही करेगा, वो ज्यादा नहीं करेगा। और उसमें रूट की मूवमेंट होती नहीं है। ठीक है, तो रूट की मूवमेंट होगी नहीं तो उससे फायदा क्या है कि रूट का कोई एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं होगा, तो वो हमारे ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से धीरे धीरे मूव होता जाएगा। ठीक है, उसका डिसएडवांटेज क्या है रिमूवेबल अप्लायंस का? तो पेशेंट मानेगा नहीं, उसको बार बार निकालना पड़ेगा, रिमूव करेगा, पेशेंट पहनेगा तो ठीक, वरना क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ट्रीटमेंट हमारी फेल हो जाएगी। ठीक है, और डिसएडवांटेज ये है कि कोई टॉर्क फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या होगा, टॉर्क फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जो डिजायर्ड मूवमेंट एग्जैक्ट चाहिए, जितनी देर में और जितने टाइम में जितनी ज्यादा मूवमेंट चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। वो अपने हिसाब से ही थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करेगा, क्योंकि आप टिपिंग फोर्स ला रहे हो। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट नहीं होगी। अब फिक्स्ड अप्लायंस, उसके एडवांटेज क्या है? टॉर्क टॉर्क फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं, आपने फिक्स अप्लायंस रख दिया तो ऑटोमेटिकली वो अपना इफेक्ट लाकर ही रहेगा। डिसएडवांटेज, तो पेशेंट की ओरल हाइजीन हम मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि टूथब्रश उसमें दिक्कत, प्रॉपर जो ओरल हाइजीन के मेथड से उसमें दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी। और एक डिसएडवांटेज ये है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर का, कि उसमें ज्यादातर चांस है कि आपको रिजॉर्प्शन भी हो सकता है। किसका? रूट का, क्योंकि आपने ज्यादातर फोर्स दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब ऑर्थो के अंदर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग हम कैसे करेंगे? तो चीफ कंप्लेंट क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, ट्रॉमा है, क्लेफ्ट है, एनवायरमेंटल है, जेनेटिक है। फिर फेशियल का एनालिसिस करिए। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन है सब। डेंटल एनालिसिस, इसके भी क्लासिफिकेशन है। स्केलेटल एनालिसिस, ठीक है, आप देखिए कि डेंटल में ठीक है तो फिर स्केलेटल का प्रॉब्लम है कि नहीं। और फिर फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है, सेंट्रिक रिलेशन, सेंट्रिक ऑक्लूजन, उसके बीच में क्या रिलेशन है, कब जाके प्रॉपर मूवमेंट होता है, ये सब एनालिसिस आएगा।
ऑर्थो के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में। ठीक है। अब सिफेलोमेट्रिक्स के बारे में देखिए। उसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंगल दिए हैं एस एंड ए। ठीक है, तो एस यहाँ पे आएगा कहीं पे, फिर एन कहाँ पे आएगा और ए कहाँ पे आएगा। एन यहाँ पे रख दीजिए और ए यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये एंगल आपको मेजर करना है। तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो 85 प्लस और माइनस 3.5। अगर यहाँ 80 होता है तो उसको आपको बढ़ाना है, 85 करना है ट्रीटमेंट करके। 90 होता है तो उसको कम करना है 85 करके। ठीक है, तो ये एनालिसिस वहाँ पे काम आता है। एस एन बी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 79 प्लस और माइनस 3। फिर ए एन बी। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, ये वाला, ये ए एन बी। तो ये एंगल से आपको क्या पता चलेगा, अपर के टीथ और लोअर के टीथ का इंक्लिनेशन। ठीक है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत है, अपर में है या लोअर में। ठीक है, तो ये जितने भी मेजरमेंट्स है, जितने भी एंगल्स है, वो सिफेलोमेट्रिक आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लाइन में भी काम आएगा। ठीक है, अब एस एन ए नॉर्मल है तो मैक्सिला नॉर्मल है। एस एन बी ज्यादा है। ठीक है, तो एस एन बी ज्यादा है उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे एस लिखिए आप, यहाँ पे एन लिखिए, और ये बी बी लिखिए। तो ये नॉर्मल हो गया। अब ये एंगल ज्यादा हुआ, इसका मतलब यहाँ तक हमने एक्सटेंड किया, तो ये मैंडिबल प्रोग्नेथिज्म है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंडिबल प्रोग्नेथिज्म। फिर ए एन बी कम है तो क्लास 3 है, यानी कि मैंडिबल बाहर है। एमपी एंगल नॉर्मल। ठीक है, ये सब आपको अलग अलग एमसीक्यूज की तरह पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको सिफेलोमेट्रिक्स प्रॉपरली कर लेना है। ठीक है, अब आएगा बायोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट। तो आप ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस रखोगे, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करोगे, तो आपने तो अपना फोर्स लगा दिया अप्लायंस के द्वारा, लेकिन अंदर होता क्या है, कैसे होता है मूवमेंट, ये सब हम सीखेंगे बायोलॉजी ऑफ ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट में। ठीक है, तो ये ऐसा है कि जो टीथ होता है ना, वो एक इक्विलिब्रियम में होता है। सब तरह के फोर्सेस आते हैं उस पर। कहाँ कहाँ से आते हैं, डेंटिशन से आते हैं, टंग से आते हैं, चीक से आता है, लिप से। ये सारे फोर्सेस से टीथ एक इक्विलिब्रियम में रहता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट किसका है, न्यूट्रल जोन जैसा, डेंटिशन जो हम कंप्लीट डेंचर में पढ़ाया था, न्यूट्रल जोन। ठीक है, टीथ को ऐसी जगह लगाएंगे, सेट करेंगे प्रोस्टो में, जहाँ पे बाहर का बक्कल, चीक का फोर्स और टंग का फोर्स दोनों इक्वल हो। और ये न्यूट्रल जोन में टीथ सेटिंग करोगे, तभी जाके वो ऑक्लूजन में ठीक से रहेगा। वरना फोर्सेस बक्कल साइड ज्यादा रखोगे तो वहां से भी दिक्कत, लिंगुअल साइड को रखोगे तो टूथ की मूवमेंट से वो टूथ निकल जाएंगे, डिसऑक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल जोन का जो कॉन्सेप्ट है वही आपको यहाँ पे ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया है। ठीक है, अब टूथ को मूव करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो पहले तो आपका एक प्रेशर आएगा, टूथ पर प्रेशर दीजिए, धक्का मारिए। और दूसरा, फोर्स ओवर मूवमेंट थ्रेशोल्ड। ठीक है, जो एक टाइम ऐसा आता है कि टूथ मूवमेंट करना चालू होता है, उसको बोलते हैं हम मूवमेंट थ्रेशोल्ड। ठीक है, आपने 10 किलोग्राम का फोर्स लगाया फॉर एग्जांपल, तब जाके मूव नहीं हुआ, फिर 11 का किया तो मूव हो गया, तो उसका थ्रेशोल्ड 11 है। टूथ का मूवमेंट का जो थ्रेशोल्ड होता है वो
यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि उससे 5 डिजिट ज्यादा, यानी कि 11 उसका थ्रेशोल्ड है, तो आप 15 या 16 फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, प्रेशर और फोर्स से मूवमेंट होगी। ठीक है, अब जो टूथ मूवमेंट होती है, वो टूथ तो हिलेगा, लेकिन उसका फेनोमेनन क्या होता है, नीचे जो पेरिडेंटल लिगामेंट होती है ना, उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो कैसे चेंजेस होते हैं, वो जितना ज्यादा फोर्स दोगे आप, तो एक साइड पर रिजॉर्प्शन होगा, एक साइड पर डिपॉजिट होगा। जिस दिशा में आपको जाना है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है, उसको ले जाना है दांत को, वहां पे एक साइड पर रिजॉर्प्शन होगा, दूसरी साइड पर डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो ये पेरिडेंटल लिगामेंट का एक फेनोमेनन है। ठीक है, जिस हिसाब से आप फोर्स दोगे उस हिसाब से क्या होगा, रिजॉर्प्शन एंड डिपोजिशन। फिर आता है, आपने फोर्स तो लगा दिया ऑर्थो का, तो क्या क्या मूव होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो एंडो ट्रीटेड टूथ होगा, वो मूव हो सकता है। ट्रोमेटाइज टूथ भी हो सकता है। पेरियो कॉम्प्रोमाइज टूथ भी होगा। और क्या नहीं मूव होगा, जो आपने इम्प्लांट प्लेस किया है वो कभी नहीं मूव होगा। और एंकलोस्ड टूथ नहीं मूव होगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, इम्प्लांट थोड़ी मूव होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले बताया टूथ मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, प्रेशर और फोर्स। फोर्स किसके ऊपर, मूवमेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर। ठीक है, अब दो डिफरेंस है, लाइट फोर्स और हेवी फोर्स में। ठीक है, लाइट फोर्स में क्या होगा, आप ये चार्ट थोड़ा देख लीजिए, इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप करोगे। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा मूव होगा, फिर वो अटक जाएगा, और फिर ज्यादा मूव होगा। ठीक है, फिर से आपको समझा रहे हैं, ये सेम जो हम बोलते हैं ना लोडिंग डोज, कोई दवाई के लिए पहला थोड़ा डोज ज्यादा दे दो, फिर उसको टेपर करते जाओ। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, जब आपने ट्रीटमेंट चालू की लाइट फोर्स से, तो थोड़ा की टीथ मूव हुआ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ही हुआ। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो मूव होना बंद कर दिया। ठीक है, वो लैग हुआ। और लास्ट में उसके, जब फोर्स देते रहे, तो ऐसे मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, तो ये एंगल बनता है, ऐसे ऊपर जाएगा फिर स्ट्रेट और ऐसे ऊपर। ठीक है, तो ये लेग फेस है ना, वो क्या करेगा, वो टूथ मूवमेंट के जो पेरिडेंटल लिगामेंट में चेंजेस चाहिए वो लेग फेस में होंगे। इनिशियली तो मूव हो जाएगा, फिर पेरिडेंटल लिगामेंट में चेंजेस होंगे, और फिर जाके वो कांस्टेंट एक मूवमेंट कर देगा जितना फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि पहले 0.2 टू 0.5 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर जितनी विड्थ होगी पीडीएल की, उस हिसाब से वो कोरिलेशन रखेगा बढ़ने के लिए। लैग पीरियड में क्या आएगा कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होंगे, ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट, वो खाली रिजॉर्प्शन करेगा, टूथ को वहां पे रखेगा, और एक साइड पर रिजॉर्प्शन करेगा, एक साइड पर डिपोजिशन करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रंटल रिजॉर्प्शन। तो अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है कि फ्रंटल रिजॉर्प्शन इज सीन इन विच पीरियड, तो लैग पीरियड। ठीक है, तो आपको अभी कोई भी टेक्निक से याद रखना हो कि फ्रंटल रिजॉर्प्शन लेग पीरियड में होता है, लेग पीरियड के टाइम फ्रंटल रिजॉर्प्शन होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, और फिर लेग पीरियड के बाद, ये रिजॉर्प्शन के बाद जितना भी आप फोर्स देते रहोगे, ऐसा टूथ लीनियरली मूव होता रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रंटल रिजॉर्प्शन के बारे में आपको समझाया है, क्या है वो फ्रंटल रिजॉर्प्शन। ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये फ्रंटल रिजॉर्प्शन है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स पहले कंप्रेस्ड होंगे और ऑक्लूड होंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का प्रेशर टेंशन अलग होगा, और केमिकल मैसेंजर्स आएंगे और मोनोसाइट आ जाएंगे। ठीक है, फिर मोनोसाइट्स एक बार आ गए, तो क्या हो जाएगा, वो ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे,
और फिर रिजॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रंटल रिजॉर्प्शन। तो अभी ये थोड़ा समझिए, आपको टूथ को मूव करना है। ठीक है, ये आपका टूथ है, तो इसको इस साइड मूव करना है। तो यहाँ पे आगे आगे रिजॉर्प्शन होगा और पीछे पीछे डिपोजिशन होगा, तब जाके ये फ्रंटल रिजॉर्प्शन का फंडा आपको समझ में आएगा। फ्रंटल रिजॉर्प्शन कैसे होता है कि पहले वहां पे ब्लड वेसल्स थोड़ी बंद हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन का जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगा। उससे बॉडी को लगेगा कि कोई इन्फ्लेमेटरी रीजन है या कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करेंगे, फिर मोनोसाइट्स आएंगे, फिर वहाँ पे मोनोसाइट्स ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो आगे की जगह जिस साइड में हमको टूथ मूवमेंट चाहिए, उस साइड में टूथ और बोन की जगह जो पीडीएल आता है वहाँ पे रिजॉर्प्शन करेगा और पीछे से डिपोजिट करेगा, ऐसे टूथ की मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, तो फ्रंटल रिजॉर्प्शन इज सीन विथ लाइट फोर्स, इज सीन विथ लेग मूवमेंट। ठीक है, लेग पीरियड जो आएगा ना, वहां पे आपको फ्रंटल रिजॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब आता है हैवी फोर्स। ज्यादा फोर्स दे दिया तो पहले इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, फिर लैग होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर लैग होगा, फिर होगा। तो ये हमको कब चाहिए हैवी फोर्स? जब ज्यादा हमको मूवमेंट चाहिए तब। ठीक है, इसमें पीडीएल ज्यादा भी कंप्रेस्ड हो सकती है और कभी कभार इसमें चांसेस है कि रिजॉर्प्शन जो होगा वो अंडरमाइनिंग होगा। ठीक है, अंडरमाइनिंग मतलब वहां बॉन्ड को पहला थोड़ा रिजॉर्ब कर देंगे ये लोग, प्रेशर जितना ज्यादा देंगे तो बॉन्ड भी थोड़ा रिजॉर्ब हो जाएगा और अंडरमाइनिंग पैटर्न टाइप का होगा। ठीक है, और ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट, तो जहाँ पे अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन हुआ है वहां पे वो टूथ वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन का फंडा समझिए। पहले तो सेम हमने जो देखा, ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाएगी, ऑक्सीजन का टेंशन बढ़ेगा, केमिकल मोनोसाइट। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ऑस्टियोक्लास्ट जो कन्वर्ट हो रहे हैं मोनोक्लास्ट मोनोसाइट्स में से, वो दो टाइप के रिजॉर्प्शन कर सकते हैं। ठीक है, अंडरमाइनिंग भी करेंगे और फ्रंटल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरमाइनिंग में क्या हुआ, वो बोन के अंदर खड्डा लगा देंगे, और फ्रंटल में क्या हुआ, वो पीडीएल के थोड़े थोड़े चेंजेस करते करते टूथ को धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आना चाहिए, लाइट फोर्स और हेवी फोर्स, फ्रंटल और अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन। ठीक है, अब ये ऑप्टिमम फोर्स है, कितना दे सकते हो आप। ठीक है, आपको थोड़ा प्रेशर इतना देना है कि वो कैपिलरी वेसल्स को बंद ना कर पाए। तो टिपिंग के लिए 50 टू 35 टू 60 है, बॉडीली मूवमेंट के लिए 70 टू 120 है, रूट अपराइटिंग के लिए 50 टू 100 है, रोटेशन के लिए 35 टू 60 है, एक्सट्रूजन के लिए 35 टू 60, इंट्रूजन के लिए 10 टू 20। तो ये फोर्स आप दे सकते हो। ठीक, ऑप्टिमम। तो कभी कभार आपने सोचा होगा कि सर हम मूवमेंट कितनी भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी ये है, कभी कभार मोबिलिटी भी आ सकती है, कभी कभार पेन भी आ सकता है, और कभी कभार रूट रिजॉर्प्शन भी आ सकता है। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स के साथ कितना वो ट्रीटमेंट है, वो की प्लानिंग और कितना वो मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे डिस्कस थोड़े चार्ट से बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एफिशिएंसी डिक्रीजेस विद रिड्यूस्ड ड्यूरेशन ऑफ फोर्स। तो ऐसा समझिए, तो कॉमन चीज है कि ज्यादा फोर्स दोगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगी, ज्यादा टाइप का फोर्स दोगे लंबे टाइम तक तो लंबी इफेक्ट आएगी। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग फोर्सेस के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो साइंटिस्ट नए नए हमारे हैं, उन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे नाइट आई वायर से, एक है स्टेनलेस स्टील वायर, फिर है हेड गेयर और इनविजालिन। ठीक है, तो अब तीनों में टाइप देखिए, एक आता है कंटिन्यूअस फोर्स,
देखो, यहाँ पे नाइट वायर्स यूज किया है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फोर्स यूज देंगे वो ऐसे, फिर मेंटेन करेंगे कंटिन्यूअस, फिर मेंटेन, फिर कंटिन्यूअस ऐसे। फिर जो स्टेनलेस स्टील वायर वाले जो होंगे वो कैसे करेंगे, लूप के टाइप, ऐसे, फिर बंद, फिर ऐसे, फिर बंद, ऐसे। और हेड गियर्स और इलास्टिक से वो क्या करेंगे, कभी कभार तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसे कि कंप्लीटली जीरो फोर्स हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब सेलुलर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व, बायोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट में आपने देखा कि कंटिन्यूअस फोर्स भी है, इंटरप्टेड भी होते हैं, इंटरमिटेंट भी होते हैं, ये वाले सबसे बढ़िया होते हैं, ठीक है। इसमें जो जीरो का टाइम होता है बीच में, उसमें आपकी टिश्यूज को थोड़ा राहत मिलेगा, हीलिंग का टाइम मिलेगा, ग्रोथ का टाइम मिलेगा, उसको रिप्लेसमेंट का टाइम मिलेगा, तो वो टिश्यू अपनी नॉर्मल रहेगी। और आपने कोई भी ब्रेक लिया नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, तो कांस्टेंट वो टिश्यू को डैमेज कर सकता है। अब कौन कौन से सेल से और कौन कौन से साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, तो पीजीई2, इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, मोनोसाइट, रैंक वाले हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी3। ये सारे सेल्स इन्वॉल्व है रिजॉर्प्शन और डिपोजिशन और टूथ मूवमेंट में, ठीक है। अब आपको मेडिकेशंस कौन कौन सी देनी है, तो आपको एन सेड्स देना है, बाइफॉस्फोनेट्स देना है। वो कैसे काम करेंगे, तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाइफॉस्फोनेट्स क्या करेंगे, वो ऑस्टियोक्लास्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना काफी रखते हैं। आपको कोई डाउट हो तो बताइए, और तो मैं थोड़ा बोरिंग भी रहेगा, और आप 3 या 4 टॉपिक करते जाओगे तभी जाके आपका वो कंसंट्रेशन रहेगा। तो आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो हमको बताइए। तो गाइज, हमारी जो वेबसाइट है वो आपको क्लियरली वेबसाइट की लिंक दिख रही है यहाँ पे, medicaldentalacademy.com। वहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डेंटल नोट्स मिल जाएगा, जीके के पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। अभी तक जो भी डेंटल जीपीएससी का गाइडेंस आपको चाहिए, जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए, वो हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हम आपको 6 महीने में आराम से सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स लेंगे, सारे सब्जेक्ट के डाउट सॉल्विंग करवाएंगे, डिस्कशंस करवाएंगे। हम लोग लास्ट में मैराथन लेक्चर्स भी लेने वाले हैं 2-3 महीने में कांस्टेंट। तो उससे आपको हर रोज एक पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज से आपको, आप जितना भी चाहे उतने टेस्ट दे सकते हो। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैक्सिमम जो अटेम्प्ट होगा, तो मैक्सिमम लॉजिक बनेगा। कोई भी एमसीक्यू होता है, कोई भी टॉपिक होता है डेंटल का, तो मैक्सिमम लॉजिक से ही आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप डेंटल जीपीएससी क्लास 2 की तैयारी कर रहे हो, ट्यूटर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अभी हमारी वेबसाइट पर जाकर जुड़ जाना है। टेस्ट सीरीज आपको 1 या 2 दिन फ्री में दी जाएगी, डेंटल नोट्स के सैंपल नोट्स है एप्लीकेशन में, वहाँ से आप नोट्स देख लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, जो कि आप 6 महीने में शॉर्टकट तरीके से आप वो पूरा कर सको, तो आपको ये सैंपल नोट्स देखकर आपको पता चल गया होगा, तो फिर आपको वो डेंटल नोट्स एप्लीकेशन में जाकर खरीदना है, परचेज करना है। हमने एप्लीकेशन में टेस्ट भी सीरीज भी थोड़ी एक्टिव कर दी है। अगर आपको इनमें से कोई टेस्ट देनी हो तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर्स भी दे रहे हैं, ठीक है। डेंटल के तो है ही, हम जीके के भी लेक्चर्स लेने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको ये यूट्यूब पर ये लेक्चर दिख रहा है और आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना है। तो गाइज, इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम आपको कांटेक्ट जरूर कर देंगे। आप हमको मैसेज भी कर सकते हो। तो इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड नाइट।